फर्स्टली यूनाइटेड हॉस्पिटल का जो कोर फिलॉसफी है वो हमको जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो एकदम ओरिजिनल है, ये मैं कहना चाहूँगा इस पर। वो कोर फिलॉसफी ये है कि हम फर्मली बहुत क्या बोलते हैं, एक अनलिमिटेड यकीन है एक फिलॉसफी में कि अच्छे लोग एक जगह पे आना है और पब्लिक के लिए काम करना है, और मेरिट सिर्फ कंसिडरेशन रहेगा, दो चीज़ें, और जो मेरिटोरियस स्टाफ रहेगा उसका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि मैनेजमेंट का। सो ये हमारा कोर फिलॉसफी है। दूसरा, पेशेंट के लिए कम्प्लीटली कमिटेड और फोकस्ड रहना है हम लोगों को। कमर्शियल्स बाद में आते हैं यूनाइटेड के लिए, सब लोग जानते हैं। जितने भी कैजुअल्टी में पेशेंट्स आए आज तक 10 साल में, कभी पूछा नहीं गया उनको कि कौन पैसे भरेगा, भरते नहीं भरते, अफोर्डेबल है नहीं है, ये सब कभी नहीं देखे, ना आगे देखेंगे। और हमारा मेन ये रहेगा कि जिसको ज़रूरत है, जब ज़रूरत है तब रहना। हम बाद में वो टाइम लॉस हम कभी नहीं किया आज तक। और नेक्स्ट इज़ प्रोटोकॉल्स, बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो किए हैं। जो क्लिनिकल, जो यूएस में चल रहा, जो यूके में चल रहा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहा, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में जो चल रहा प्रोटोकॉल, वो हम अपने आप इनकलकेट करने का ट्राई कर रहे हैं विद आवर अवेलेबल रिसोर्सेस। सो ये दूसरी चीज़। देन थर्ड थिंग, यूनाइटेड हॉस्पिटल का मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनना, ये एक पब्लिक से बनाया गया हॉस्पिटल और पब्लिक के लिए रहेगा हॉस्पिटल, ऐसा मैं समझता हूँ। ये कोर फिलॉसफी को हम बात करते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर और टॉप नॉच क्लिनिकल सर्विसेज हम देंगे। हेलो एवरीवन, सो इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू पुट फोर्थ in front of you all a very happy occasion of the United Hospital, that United Hospital is adding on one more super specialty wing right adjacent to the previous one. This super specialty wing, the distinct facilities what this will have is, it will have a in-house 64 slice CT, which will come in very handy for all the trauma patients, and it will save a lot of time in diagnosis, in also understanding the prognosis of the patient. It will add a lot of value, number one. Number two, we also propose to open up this CT scan facility for all the outpatients as well, whether they come to United Hospital directly or are referred from any other hospitals. We are rendering our services on an outpatient basis also to all the people of this region at a very, very affordable price. Secondly, this super specialty wing will have a cath lab facility. The cath lab installation will get completed by April 10th maximum. Because of the pandemic, there are component of the cath labs are delayed, and so the delay. So by April 10th max it will be installed, and we will have a full-fledged cath lab facility with a 15-inch detector, and which will not only have cardiology applications, but it can also be utilized for emergency neurology procedures and vascular injuries, vascular procedures, and other non-cardiology applications of the cath lab. So this is the first hospital in this region to bring up this facility, which will have huge, vast applications of non-cardiac, cardiac as well as non-cardiac applications of the cath lab instrument. This is a brand new machine of the Siemens, which the hospital has procured, and we dedicate this facilities to the people of this region who have placed their trust in us and who have given us an opportunity in last 10 years to give services to them. So it gives me a very distinct sense of satisfaction that in the last 10 years we have been able to cater to about 35,000 patients. Out of that, nearly 30,000 are surgical. So the surgical success rate having been almost 95% is the survival rate of the United ICU. So United ICU is trusted and regarded in this by the people of this region as one of the best ICUs, and with one of the best team, with one of the best clinical outcomes, alhamdulillah, for last 10 years. सर इन शॉर्ट आम जनता को समझने के लिए नए विंग के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ICU बेड्स कितने हैं, तो उस बारे में बताइए सर।
नए विंग में जैसा कि मैंने बताया है कि कार्डियोलॉजी फैसिलिटी एक एडिशनल रहेगी, और कार्डियोलॉजी फैसिलिटी के अलावा ये जो कैथ लैब है वो कैथ लैब के नॉन कार्डियक एप्लीकेशंस जैसे न्यूरोलॉजी में एप्लीकेशंस, पेरिफेरल वास्कुलर इंजरीज में एप्लीकेशंस भी रहेंगे। ये सारे कार्डियोलॉजी एंड नॉन कार्डियोलॉजी में कंबाइंड एप्लीकेशंस रहने वाला कैथ लैब, ये एक ही कैथ लैब इस रीजन का है जो सारे अक्रॉस डिपार्टमेंट सर्विसेज दे सकता है। ये पहली बात। दूसरा, यहाँ पे 24 बेडेड आईसीयू रहेगा, उसमें से 5 बेडेड डेडिकेटेड डायलिसिस भी रहेंगे, जो ओपीडी डायलिसिस रहेगा। लीड कंसल्टेंट या फिर लीड नेफ्रोलॉजिस्ट जो है इस हॉस्पिटल के जैसे पहले जैसे विवेक पाटिल रहेंगे, डॉक्टर विवेक पाटिल। सो 5 बेडेड डायलिसिस एंड अनदर नियरली 19 बेड्स का जो आईसीयू रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अबाउट 5 बेडेड कैजुअलिटी। सो यहाँ पे अगेन पहले हॉस्पिटल के जैसा हमारा कैजुअलिटी आईसीयू फ्लोर पे ही है इधर भी। सो हमको अच्छा वर्कआउट हुआ है वो, तो इसलिए हम रहेंगे कि हम चाहेंगे कि वहीं रहे, तो वहीं पे है एक और आईसीयू ऊपर। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 2 हाईटेक मॉड्यूलर ओटीज़ हैं। मॉड्यूलर ओटीज़ से हमारा कैपेबिलिटी जो है, हम ट्रांसप्लांट्स करने के कैपेबल हैं अभी। 2 मॉड्यूलर ओटी आजू बाजू रहने की वजह से डोनर हार्वेस्टिंग एंड रेसिपिएंट ग्राफ्टिंग दोनों भी हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते ये सारे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को पार करते हुए हम ये यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से हम लोग ऑलरेडी कैपेबल बन गए। उसके अलावा भी एक कैपेबिलिटी एक और है कि ये कार्डियक कैथ लैब में जनरली कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का एक अच्छा सा फैसिलिटी होना ज़रूरी है। उसके लिए जो ओटी चाहिए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने वी हैव ब्रॉट इन दोज फैसिलिटीज ऑल्सो। सो कहना ये है कि ना सिर्फ न्यूरोलॉजी, ना सिर्फ पेरिफेरल वास्कुलर इंजरीज, बट दिस विल ऑल्सो गो ऑन टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सेंटर ऑफ दिस रीजन। ये हमारा एक वी एनविसाज दिस। यहाँ पे टीम वही रहेगी यूनाइटेड की, या यहाँ पर भी टीम कोई? बिल्कुल टीम वही रहेगी, और उनसे ज़्यादा एडिशन भी होते जाएंगे अभी, क्योंकि हमारा कैपेसिटी ऐड हो गया है, तो नेचुरली टैलेंट भी ऐड होएगा। तो जो पहले हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो दे विल कंटिन्यू एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल एज ऑलवेज, and they will continue, and any new talent joining in will be more than happy to see that new talent joins in। ये हम चाहते हैं कि यूनाइटेड हॉस्पिटल ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए एक अच्छा सा सेंटर बने, बट एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि एक मेरिटोरियस प्लेटफॉर्म बने जो कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज़, कटिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो सबको ये एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनका टैलेंट और मेरिट प्राइम इम्पोर्टेंस रहेगा, कुछ और मायने नहीं रखेगा। इनॉग्रल प्रोग्राम के बारे में कल 6 मार्च 2022 मॉर्निंग 10 बजे ये नया बिल्डिंग पब्लिक के लिए डेडिकेट किया जाएगा। जिडगा मुगुड़खोड़ मठ के महास्वामी जी, पूज्य डॉक्टर मुरुगराजेंद्र महास्वामी जी, जो कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो उनके डिवाइन प्रेजेंस में, उनके होली ब्लेसिंग्स में, स्टेट के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है HD कुमार स्वामी साहब, वो कंसेंट दिए हैं, एग्री हुए हैं उनका प्रेशियस टाइम स्पेयर करके ये पब्लिक को डेडिकेट करने के लिए। उनके अलावा भी सारे ये एरिया के हर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर वो आके फैसिलिटीज़ देखेंगे तो हम और उन्होंने दोनों मिलकर हम साथ में काम करना चाहेंगे पब्लिक के लिए। तो सारे MLAs ऑफ दिस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट एंड बीदर डिस्ट्रिक्ट को हम पर्सनली इनवाइट किए हैं। तो वी बिलीव दैट ऑल ऑफ देम विल कम। और इसी मौके पे एक गुलबर्गा में भी एक सीनियर इस स्टेट के पॉलिटिकल लीडर CM इब्राहिम साहब भी आए हुए हैं, तो उनको भी हम सिंस ही इज़ हियर वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट नो आइए सर, आप आए तो भी हमको बहुत खुशी हो जाएगा, और आपका गाइडेंस वगैरह भी हमको चाहिए बोल के हम विशेष करके ख़ास करके उनको जाके हम उनको निमंत्रण दिए हैं, और उन्हें आने के लिए उन्होंने भी कंसल्ट किए हैं। तो कल से ऑपरेशनल रहेगा सर हॉस्पिटल? 10th से ही ऑपरेशनल होगा, कि अभी OPD ऑलरेडी ऑपरेशनल है हमारा। OPD सर्विसेज यही न्यू बिल्डिंग में ऑलरेडी चालू है, तो सारा इन पेशेंट्स यहाँ पे चालू होने का 10 तारीख से चालू होगा, 10th मार्च। ये क्या हार्ट स्पेशलिस्ट विंग बन रहा है सर? क्या इस जनरल भी रहेगा सर, हार्ट को स्पेशलिस्ट है? ये मेनली हम लोग ट्रॉमा सुपर स्पेशलिटी इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजी बोल के रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कार्डियोलॉजी के लिए चाहिए वो ट्रॉमा में भी यूज़ होएगा, तो हम वो क्यों जाने दें कि हम वो उसका जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ट्रॉमा केसेस के लिए वो भी हम रखना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉमा, सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी एंड मॉड्यूलरिटी रहने की वजह से आने वाले दिनों में सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, टोटल नी रिप्लेसमेंट्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट्स और तमाम हाई एंड सर्जरीज करने के लिए कैपेबल ये जो ओटी है इसका फैसिलिटी भी रहेगा। एट द सेम टाइम हमारा जो पहले वाला बिल्डिंग है वो भी चालू रहेगा। वो एक तकरीबन एक 15 to 20 डेज़ का उधर अंदर इंटरनल मेंटेनेंस का काम है, वो थोड़ा दिन मेंटेनेंस का कर लेके वो भी चालू होगा। आपने इतना भरोसा किया और आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है और आपकी टीम कंटिन्यूस आपके साथ है, तो इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इस 10 साल में जो भी हम कर पाए हैं, जो भी सक्सेस हमारे को मिला है, उसका क्रेडिट सबसे पहले ऊपर वाले को हम देना चाहेंगे, क्योंकि बगैर उसके हम शायद टीम भी नहीं बन पाते, बगैर उनके मर्ज़ी के हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ला पाते, बगैर उनके मर्ज़ी के हमारे को कुछ नहीं कर सकते थे। ये मेरा फर्म मानना है कि यूनाइटेड हॉस्पिटल एक ऊपर वाले का ब्लेस्ड प्लेस है और ब्लेस्ड प्लेस रहना चाहिए, यही हमारी दुआ हमेशा रहेगी। सो सबसे पहले मैं इसका डेडिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले का सबसे पहले देते हुए, यहाँ पे जो हमारे टीम में हैं सर्जन्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे एडमिन स्टाफ, ग्रुप सी डी स्टाफ, एक स्टाफ जो लास्ट पर्सन ऑफ द स्टाफ यूनाइटेड हॉस्पिटल से लेके टॉप मोस्ट कंसल्टेंट तक, ये कलेक्टिव जो टीम है इनको वो कंप्लीट क्रेडिट जाता है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, द पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसको हम सर आँखों पे रखते हुए उनका हमेशा तहे दिल से हम शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हमको एक मौका दिया सर्विस करने का। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं गुलबर्गा में और आने वाले दिनों में भी और भी हॉस्पिटल आ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आवाम का जो ट्रस्ट है वो किस पे रहेगा, वो कितना हमारे पे रहेगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम उसी डायरेक्शन में आगे भी काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे। Last question, sir. Like, what do you think the new competitive hospitals are also coming up with latest technologies? We have already seen various hospitals. So, what makes you special? You've been getting 10 years of experience already. But what do you think? Like, how do you think like this 3 waves has already passed? The situation overall health is also depreciating. So, what do you think United Hospital will do for the people apart from this? ऐसा मैं मानता हूँ, और दूसरे हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स भी अपना फैसिलिटी दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, वेलकम चेंज है कि सब लोग अपने अपने जितना भी ये हुआ करना हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विसेज देने का ट्राई कर रहे हैं। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा रहेंगे, और हम जो साथ उनका देना पड़ेगा हम पब्लिक के लिए उनका साथ देंगे। सर, इसमें स्कीम्स वगैरह भी आप अवेल कर रहे हैं? स्कीम्स पहले से ही यूनाइटेड में यशस्विनी स्कीम ऑलरेडी एम्पैनल्ड है, लेकिन सरकार की तरफ से रुका गया था यशस्विनी स्कीम, तो बीच में थोड़ा गैप सरकार की तरफ से होता, हमारे तरफ से नहीं। तो यशस्विनी स्कीम हमारे पास चालू रहेगा, और दूसरे स्कीम्स क्या क्या चालू हैं वो टाइम एंड अगेन हम पब्लिक को नोटिस में लेके आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम सब सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी वी मस्ट ग्रुप टुगेदर एंड ट्राई टू बिल्ड अ वेरी हेल्दी इंस्टीट्यूशन फॉर द पीपल। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर जोशी, उडुपी कृष्णा जोशी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। यूनाइटेड हॉस्पिटल के साथ 10 साल का मेरा रिश्ता है। जिस दिन यूनाइटेड हॉस्पिटल शुरू हुआ उस दिन से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ द नेम इटसेल्फ सेज केयर पार एक्सेलेंस बोल के है। मतलब जो हम केयर देते पेशेंट को वो एक्सेलेंट तरीके का रहना, वो तो हमारा प्रिंसिपल है, वही इससे हम पेशेंट्स को देख रहे हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बोले तो जो ट्रस्ट पेशेंट लेके आते हैं यहाँ पे यूनाइटेड में हॉस्पिटल में हमारा इलाज होता बोल के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उसको इम्पोर्टेंस देते भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना द नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हाट वी डू इन यूनाइटेड हॉस्पिटल इज़ मच मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे हो जाता है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। 95% ऑफ द पेशेंट्स आर ऑपरेटेड, दे आर ऑल रिकवर्ड वेरी वेल फ्रॉम द ICU। तो यहाँ का जो केयर पार एक्सेलेंस जो बोलते वो दैट इज़ गोइंग ऑन, और यहाँ पे ट्रीटमेंट सब गुलबर्गा के आवाम को और सराउंडिंग प्लेसेस के आवाम को हम देना चाहते हैं।